Good evening. Today is 17th of April, and I'm recording a weekend trading session with all of you. Weekend trading means weekend I'm utilizing मार्केट को समझने के लिए, मार्केट के एक डायरेक्शन को काइंड ऑफ मैक्रो लेवल पे एक व्यू बनाने के लिए एंड स्टॉक स्पेसिफिक अगर लगे कि कहीं पे स्टॉक में कुछ एक्टिविटी है तो उसमें आपके लिए ऑब्जर्वेशन लाने के लिए I hope you guys are liking these initiatives from my side. And if you are, then definitely share these initiatives with your friends and family. So चालू करते हैं. So long weekend था, काफी लंबा छुट्टी हो गया मार्केट के अंदर में because of lot of holidays in Indian market and globally markets were behaving in a certain manner. So जब हम लोग weekend analysis की बात करते हैं तो let us try to figure out कि globally market के अंदर में क्या हो रहा है. फिर उसके बाद हम लोग इंडियन मार्केट में एक व्यू बनाएंगे एंड देन वी विल ट्राई टू फिगर आउट फ्यू स्टॉक्स जिसमें मोमेंटम है और जहां एक्टिविटी हो सकती है. सो लेट मी ट्राई टू शेयर माय स्क्रीन हियर. ऑलराइट, सो ये स्क्रीन शेयरिंग आपके सामने. ग्लोबल मार्केट्स की अगर बात करें सो डॉलर above 100, so dollar index is above 100, which is definitely not a good sign. Nifty is hovering around 17,500 level, which is above Nifty 200-day moving average, which is around 16,800. So market 200-day moving average के ऊपर है, तब तक stock specific momentum activity होती रहेगी. But I would always recommend, क्योंकि डॉलर इतना strength दिखा रहा है, जब तक कि डॉलर रिवर्सल नहीं दे, तब तक बड़े स्टॉक्स में कोई भी स्टॉक में बड़ा मूवमेंट नहीं खेलना चाहिए. It could turn out to be very counterproductive. So my humble submission to all of you would be try to be conservative in your position building. आपका जो core portfolio है, which is for long-term investment, that can continue with an SIP, but your satellite portfolio, which is more momentum oriented, should definitely have a very very conservative approach. तो अगर आप एक्टिव मार्केट पे हैं तो छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करिए छोटे छोटे स्टॉप लॉस के अगेंस्ट, बिकॉज मार्केट डेफिनेटली जब तक डॉलर ऊपर की तरफ है और निफ्टी एक रेंज में लग रहा है, निफ्टी may not go up in a hurry, and also nifty because it is trading above 200-day moving average, it doesn't look like nifty in a hurry नीचे भी जाने वाला है. डॉलर ऊपर क्यों जा रहा है? We all know that US yield curve is going up. So this is US 2-year yield curve and this is US 10-year yield curve. So continuously ऊपर जा रहा है. What a lovely movement US के yield curve में हुआ है, and dollar has obviously supported that because of the inflation in US. So ये बातें I think now pretty much everyone knows about these things. So one needs to be conservative in the position one is keeping in the market right now. All right. अब stock की अब बात करें तो जब हम conservative position की बात करते हैं तो obviously we are trying to put our satellite portfolio, again repeating, core portfolio, satellite portfolio. Core portfolio should always be in a large companies or the companies whose business model you understand or you're convinced. For example, mother stock, जिसका मैंने एक theory बनाया कि वो सारी companies जो mother हैं, जिनके खुद के businesses हैं, and they obviously have kids, but that means the subsidiary companies or the ownership companies जहाँ पे भी activities है. So core portfolio में you should have these bigger companies और मिड कैप कंपनीज ऑल्सो जिसका बिजनेस से आप कन्विंस्ड है. इट्स मोर ऑफ एन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कॉल. बट सैटेलाइट पोर्टफोलियो के अंदर में मोमेंटम, तो बिकॉज हमको कंजर्वेटिव होना है, बिकॉज वी वांट टू इन्वेस्ट और टेक पोजीशंस इन स्टॉक्स जहां पे नीचे जाने की पॉसिबिलिटीज कम है. वी शुड फिगर आउट स्टॉक्स जहां पे अर्निंग ग्रोथ है, बिकॉज अल्टीमेटली अगर ऐसी कंपनीज हमको मिल जाती है जहां पे देयर इज क्वार्टर और क्वार्टर बेसिस पे अर्निंग ग्रोथ भी है, प्राइस का स्ट्रेंथ भी है, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इवन दो मार्केट फॉल, these stocks will remain outperformer in the market. तो वो कैसे निकलेगा? अगेन स्टॉकेज लेते हैं. स्टॉकेज के अंदर में एक मैंने कॉम्बिनेशन बना रखा है, वेरी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन, which is a combination of earning and price strength. So the combination जो मैंने ऐड किया स्टॉकेज के अंदर में वो है स्टॉक्स विच आर विद इन 52-week हाई जोन. ये कैसे ऐड होता है? अगर आप किसी भी कॉम्बिनेशन में जाएंगे तो यहाँ बहुत सारे हमने कॉम्बिनेशन लाइब्रेरी दे रखा है, सो यू कैन जस्ट गो एंड सर्च फॉर देम. स्टॉक विद इन 52-week हाई जोन, stock outperforming benchmark index in both 1 week and 3 month,
इम्प्रूव्ड रिटर्न ऑन इक्विटी, तो वो कंपनी बताइए जिसका आरओई इम्प्रूव हुआ है, वो कंपनी बताइए जिसका आरओसीई इम्प्रूव हुआ है, वो कंपनी बताइए जिसका क्वार्टरली नेट प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है पिछले साल के मुकाबले, वो कंपनी बताइए जिसका क्वार्टरली एबिटा मतलब ऑपरेटिंग इनकम ग्रो हुआ है पिछले साल के मुकाबले, और वो कंपनी बताइए जो अपना क्वार्टरली सेल्स कंसिस्टेंटली बढ़ा रही है। तो फंडामेंटली अच्छी स्टॉक्स और प्राइस एक्शन वाइज स्ट्रेंथ दिखा रही है। तो ये सारे स्टॉक्स है जो मेजॉरिटी स्टॉक मतलब बड़े स्टॉक्स, छोटे स्टॉक्स की बात नहीं करते यहाँ पे, मेजर स्टॉक्स के अंदर में ये सारे स्टॉक्स है जिनके अंदर में ये क्राइटेरिया मीट होता है। तो हम इसको एक्सेल में डाउनलोड कर लेते हैं और इसको ओपन कर लेते हैं। या सो ये एक्सेल में सारा डेटा आ गया। अब ये सारी कंपनीज को, इतनी सारी कंपनीज है, हम इसको कॉपी करेंगे और ट्रेडिंग व्यू के अंदर में फीपा बोल के एक वॉच लिस्ट में बना रखा हूं। लेट मी जस्ट शो यू दैट फीपा। यहां पर एक बार ये जो एग्जिस्टिंग है ये सारी मैं डिलीट कर देता हूं। ओके, एंड लेट मी ऐड ऑल दीज कॉपी पेस्ट करके। ठीक है, तो ये सारी कंपनीज मिल गई। एक कंपनी यहां पर गड़बड़ लग रही है, वो है एमएनएम। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा को मैं यहां पर ऐड कर देता हूं। ऑल राइट, सो हियर वी आर। सो दीज आर द कंपनीज जहां पे फंडामेंटली चीजें ठीक है और प्राइस बिहेवियर वाइज भी ठीक है। तो एक बार टॉप परफॉर्मर में देख लेते हैं। सबसे बड़ी कंपनी, सबसे टॉप परफॉर्मर में आईएफएल फाइनेंस। आईएफएल फाइनेंस, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल चार्ट स्ट्रक्चर, दोनों तरफ से स्ट्रांग है, 2 आवली में भी स्ट्रांग है, डेली में भी स्ट्रांग है। तो ये स्टॉक मेरे रडार पे होना चाहिए। प्राज इंडस्ट्रीज, प्राज इंडस्ट्रीज अब ईओडी में भी स्ट्रांग दिखा रहा है, 21 पीरियड में भी स्ट्रांग है और 2 आवली में भी स्ट्रांग है। तो इसको भी मेरे को रडार में रखना चाहिए। ये कंपनी अगर यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी 440 के ऊपर, so there is a possibility of a breakout. For people who don't understand this model, मैंने अपने लर्न टू ट्रेड में सेशन नंबर 31 में ये मॉडल सिखा रखा है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रखा है। तो इफ यू हैव नॉट सीन दैट येट, यू शुड सी दैट। ऑलराइट, तो प्राज भी देखने लायक है। रेडिंगटन, वाओ ब्यूटीफुल, सो रेडिंगटन भी देखने लायक है। स्ट्रेंथ, यहाँ पर भी स्ट्रेंथ, यहाँ पर भी स्ट्रेंथ है, तो ये भी स्टॉक देखने लायक है। तो ये सारे जो स्टॉक्स है जिनके अंदर में मुझे प्राइस स्ट्रेंथ भी नजर आ रहा है, फंडामेंटल रीजन भी लग रहा है इनपे बाय करने का, इनमें मैं धीरे धीरे अपने पोजीशंस को बिल्ड करूंगा, बिकॉज चांसेस बहुत हाई है कि इन स्टॉक्स के अंदर में हमको अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो आप स्टॉकेज यूज करेंगे तो आप खुद ये स्टॉक्स का लिस्ट स्टॉकेज से डाउनलोड कर पाएंगे। लेट मी शो यू फ्यू नेगेटिव स्टॉक्स। जैसे ये स्टॉक है मैस्डॉक। ये लास्ट वीकेंड भी अपन लोगों ने एनालिसिस में स्टॉक आया था, बिकॉज इसमें डिलीवरी काफी हुई थी लास्ट टू लास्ट वीक। तो मैस्डॉक के अंदर में प्राइस ऊपर गया है, ब्रेकआउट दिया, उसके बाद प्राइस रिट्रेस कर रहा है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, तो चांस है कि ये यहाँ से रिवर्स कर जाए, यहाँ से रिवर्स कर जाए। तो ये स्टॉक भी देखने लायक है। उसके बाद है क्रिसिल, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर, बट ये ब्रेकआउट के बाद में रिवर्स कर गया है, तो फॉल्स ब्रेकआउट वाइज के अंदर में चांसेस है कि ये यहाँ से इस लेवल से ये पुल बैक कर सकता है, और अगर इस लेवल से इसने पुल बैक किया और इस लेवल के ऊपर चलने लग गया, तब फिर इस स्टॉक को कोई भी नहीं रोकेगा, बिकॉज दिस इज अ स्ट्रॉन्ग स्टॉक। इसको भी हमको देखना चाहिए। कॉनकॉर, कॉनकॉर कॉर्पोरेशन, अगेन कंटेनर कॉर्पोरेशन इज स्ट्रॉन्ग, बट ये शॉर्ट टर्म के अंदर में वीकनेस दिखा रहा है, बट स्टिल ओवरऑल स्ट्रक्चर में ये स्ट्रेंथ है। तो अगर ये नीचे आ रहा है तो मुझे रिट्रेसमेंट के लेवल्स देखते होंगे। तो एक तो लेवल ये हो गया विच इज 21 पीरियड मूविंग एवरेज 663, और एक लेवल हो गया जिसने प्रीवियस स्विंग लो बनाया था, मतलब ये तकरीबन 445 के लेवल पे स्विंग लो बनाया था। तो यहां से हो सकता है कि ये रिट्रेस कर जाए, तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट लेवल। तो यहाँ राइट क्लिक करके मैं एक अलर्ट ऐड कर दूंगा, राइट। तो यहां से चांसेस है कि अगर ये इस लेवल को हिट करता है तो यहाँ से घूम सकता है। उसके बाद है सुजलॉन। सुजलॉन का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से मैं स्टॉक के अंदर में नहीं काम करना चाहूंगा। उसके बाद है सीजी पावर, अगेन स्ट्रॉन्ग स्टॉक, रिट्रेसिंग, कैन गेट सपोर्ट फ्रॉम मूविंग एवरेज और कैन गेट सपोर्ट फ्रॉम द प्रीवियस स्विंग लो व्हिच वाज दिस। तो ये सारे स्टॉक्स जो है
मेरी राय ये रहेगी, बिकॉज इनके अंदर में फंडामेंटल एक्टिविटीज है, क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से परफॉर्मेंस अच्छा है, तो अगर मार्केट में अभी आपको मोमेंटम प्ले करना है तो आई वुड सजेस्ट ओनली प्ले इन फीपा स्टॉक्स। ओके, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, फीपा में कौन कौन से पैरामीटर्स मैंने डाल रखे हैं, विद इन 52 वीक हाई जोन, आउट परफॉर्मिंग बेंचमार्क इंडेक्स, और फंडामेंटली जिन स्टॉक्स के अंदर में एक्टिविटी है। एक काम आप और कर सकते हैं, जब आप फिल्टर करेंगे यहाँ पे तो पीरियड वाइज करंट पीरियड को खाली आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि वो ही स्टॉक्स आएंगे जो करंट पीरियड के अंदर में रिजल्ट है। तो अभी तक क्योंकि रिजल्ट आने अभी तक चालू नहीं हुए हैं तो करंट पीरियड में कोई स्टॉक नहीं नजर आ रहा है, बट हाँ, हिस्टोरिकल क्वार्टरली रिजल्ट को अगर बेस करके देखें तो ये सारी स्टॉक्स हमारे सामने हैं, एंड वी कैन लुक एट दीज स्टॉक्स फॉर पोजीशन बिल्डिंग। नाउ एक एक मैं छोटी सी बात बोलूंगा आपको कि पोजीशन बिल्डिंग भी एक साइंस है जिसको आपको समझना चाहिए। कभी भी किसी भी स्टॉक में यू शुड नॉट इन्वेस्ट इन वन सिंगल प्राइस पॉइंट। लेट मी स्टॉप द स्क्रीन शेयर एंड डिस्कस दिस पॉइंट विथ यू। सो जब भी आप किसी भी स्टॉक में पर्टिकुलरली कैश मार्केट में पोजीशन बिल्ड करते हैं तो आप पोजीशन बिल्ड करते हैं, छोटा क्वांटिटी डालते हैं। से किसी स्टॉक में आप सोच रखे मुझे 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, तो एक प्राइस पे आप 20% मतलब 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे। जब प्राइस नीचे जाएगा और स्टॉक फिर भी स्ट्रांग है तब आप और 20,000 और 20% डालेंगे, विच इज 1 लाख। और सपोज प्राइस और नीचे आ गया और स्टॉक में अभी भी स्ट्रेंथ है, मतलब वो आरएस ऊपर चल रहा है, तब आप और 20% डालेंगे। ऐसे करके आप एवरेजिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि स्टॉक अभी भी स्ट्रांग है। अगर स्टॉक वीकनेस की तरफ चला गया, आरएस नीचे चला गया, तब आप लॉस बुक कर देंगे। यू विल नॉट वरी अबाउट दैट, बिकॉज चांसेस कम होते हैं कि स्टॉक जो नीचे जा रही है वो कॉन्सिस्टेंटली नीचे जाए अगर उसका आरएस 0 के ऊपर है तो। लेकिन अगर स्टॉक सपोज रिवर्स कर जाता है और अपने प्रीवियस स्विंग हाई को वो तोड़ देता है, तब आप ऑल इन चले जाएंगे। ऑल इन मतलब आपने 20% पहले डाला था, फिर आप 80% डाल देंगे क्योंकि ब्रेकआउट मिल गया है, और ब्रेकआउट में जो आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे तो बड़ा रैली उस स्टॉक के अंदर में आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। सो start tracking FIPA stocks. Start looking at the momentum which is happening in the market. Broadly market का view same है जो last weekend में था कि market is confused, डॉलर बहुत जोर से कंफ्यूज कर रहा है, बायर है मार्केट के अंदर में, इसीलिए मार्केट 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। सो स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी मार्केट में चल रही है, चलती रहेगी। तो आप बोल्ड होके छोटे छोटे पोजीशंस लेके काम करिए, छोटा टेक प्रॉफिट, छोटा स्टॉप लॉस से। डू नॉट ट्राई टू गो एग्रेसिव इन द मार्केट till the major critical level of the market, including dollar index, gives you a major comfort for a breakout or breakdown. All right. Thank you so much for watching this short and short video on weekend analysis. I hope you like it. And I will come back again next weekend with this short analysis to help you decode this financial market ecosystem of India. Thank you. Bye bye. Good day.